Hello children. In the last video we learnt about asexual reproduction. Asexual reproduction in unicellular and multicellular organisms. So today we'll start with sexual reproduction. Okay. Sexual reproduction takes place with the help of two germ cells. Okay. तो sexual reproduction कैसे होता है? With the help of two germ cells. Okay. Now which are the germ cells? In human beings, it is the sperm and the egg. Now, there is sexual reproduction in plants as well. Okay, so we have to learn about sexual reproduction in plants as well as sexual reproduction in human beings. Okay, so in both of them, the common thing is that two germ cells are involved. Sexual reproduction involves two germ cells. So there are two processes that complete the sexual reproduction, which is gamete formation and fertilization. First is the gamete formation within the body of the individuals, and then fertilization once the two gametes come together. Okay. So what is gamete formation? Gamete formation happens by meiosis cell division. Yes, we studied last time in the previous videos. हमने पहले पढ़ा था previous videos में how meiosis cell division takes place in individuals. Okay, and that is it takes place in the reproductive cells, not in the non-reproductive cells. Which is the process that takes place in non-reproductive or somatic cells? That is mitosis. So in gamete formation, the process by which gamete formation happens is meiosis cell division, where the number of chromosomes is reduced to half, forming haploid gametes. This sperm and egg are haploid gametes. When they meet together and they fertilize, they form a diploid zygote. Okay, we'll study this in some more detail. As of now, you have to remember that अभी क्या याद रखना आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेसेस होते हैं, which are the gamete formation and fertilization. Gamete formation happens in individuals, and then when the gametes from both parties meet, then what happens? A zygote is formed. Okay, and that fertilizes, and then a new organism is formed. Okay, so what male gamete and female gamete in human beings, sperm and egg, when they meet together, a new human being is created. जब एक ह्यूमन बीइंग में मेल में का स्पर्म जो हैप्लॉइड गैमेट है और फीमेल का एग जो भी हैप्लॉइड गैमेट है, ये जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स मीट करते हैं तो क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट. Okay, that we'll see as we go ahead. Okay, so what happens during fertilization? Fertilization is the union of the male sperm and the female egg. The zygote divides by mitosis and an embryo is formed. अभी एक बार ये diploid आपने देखा है कि previous class में जब diploid organisms में क्या होता है? Mitosis से cell division होता है. So once these haploid gametes meet and make a diploid zygote, they divide by mitosis. Okay, now what happens? And after that the embryo is formed. Now since the embryo is formed by union of two different gametes, क्या होता है? The characteristics of the new embryo has the characteristics of both parents. है कि नहीं? देखो ये एक ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स उस और नए ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा. ओके, तो इसकी वजह से बहुत जेनेटिक वेरिएशन वी कैन ऑब्जर्व इन sexual reproduction. So genetic variation, what does it do? It helps organisms to adjust to changing environment and maintain their existence. So what you have to remember, sexual reproduction takes place in two processes, gamete formation and fertilization. It involves two germ cells. Which are the two germ cells? The male gamete and the female gamete. These are called haploid gametes. Okay, because they divide by meiosis. And now we are going to study about sexual reproduction in plants and sexual reproduction in humans. So we will begin with sexual reproduction in plants. Okay children, so this is the inside portion of a flower. ठीक है, एक फ्लावर का एक इंटरनल पोर्शन है. तो अभी हम इसके पार्ट्स देखते हैं क्या होता है. फ्लावर के पार्ट्स ये आपको कट करके दिखाया गया है. तो आप जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर देखते हैं ना, फूल में एक ऐसा एक बाहर आता है, उसको कहा जाता है स्टाइल. ओके, दिस इज द स्टाइल. और स्टाइल के एकदम टॉप में आप देखेंगे तो हल्का सा स्टिकी सा कुछ रहता है, दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा. ठीक है, स्टिग्मा और स्टाइल. ठीक है, फिर
आप और नीचे देखेंगे तो देर आर सम फिलामेंटस आउटक्रॉपिंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लावर। ऐसे पतले पतले से डंडे जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर छोटे छोटे ऐसे लटके हुए देखा। आप कभी ध्यान से फ्लावर देखोगे तो देखोगे अंदर बहुत सुंदर है। उसके ऊपर का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन दैट इज ऑन टॉप, लिटिल रेक्टेंगुलर लिटिल थिंग, दैट इज कॉल्ड द एंथर, एंड दी सपोर्टिंग थिंग्स आर कॉल्ड द फिलामेंट। ओके, क्या है ये? सेंटर का स्ट्रक्चर स्टाइल है, सबसे टॉप में कुछ छोटी सी कुछ ऐसा स्टिकी चीज है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। फिर अंदर जब आप ये जो ऐसे फिलामेंटस जो पार्ट देखेंगे, उसका फिलामेंट इज कॉल्ड, इसका जो डंडा इज कॉल्ड द, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द फिलामेंट, एंड द टॉप पोर्शन इज कॉल्ड द एंथर। नाउ दिस इन द सेंटर, द बल्बस पार्ट इन द सेंटर, ऐसे बल्ब जैसा एक जो पार्ट है सेंटर में, वो है इस फ्लावर का ओवरी। ओके, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है दूसरे फ्लावर के बनने का, वो इसके अंदर होता है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इस ओवरी के अंदर होता है। फिर ये जो पेटल्स है, पेटल्स को क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक है, हम तो पेटल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम इज कोरोला। फिर ये जो हम नीचे के जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं ना, जो नीचे से फ्लावर को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द सेपल्स। हम सेपल्स करके जानते हैं, उसका साइंटिफिक नेम इज कैलिक्स। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अभी इसमें से 3 पार्ट हैं जो एक गाइनीसियम, यानी कि जो उसका गाइना, जो हम गायनाकोलॉजिस्ट सुना है हमने ना, गायनाकोलॉजिस्ट तो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। जो गाइनीसियम करके जो पोर्शन है, दैट इज मेड अप बाय द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी टुगेदर मेक द gynoecium. Okay, so we'll write it down here. gynoeci, gynoecium. Okay, क्या क्या बनाता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी साथ में मेक्स अ gynoecium. ठीक है, अभी एंड्रीशियम इज मेड बाय द एंथर एंड द फिलामेंट. ओके, एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर मेक द एंड्रीशियम. ये दो है ना, they make up the एंड्रीशियम. तो ये जो फ्लावर है ना, उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों है. सो इसलिए इसमें एंड्रीशियम भी है, गाइनीशियम भी है. गाइनीशियम जो हम लोग जो ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, उसमें गायनैक लेडीज के लिए है ना. तो इसमें जो आप उससे समझ जाइए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा है. और एंड्रीशियम is talking about the male reproductive organ. So what are the parts of a flower? We have stigma, style, ovary. Okay, stigma, style and ovary together make the gynoecium. Then we have the anther and the filament. The anther and the filament together make the andrecium. Now at the bottom, this stem is called the pedicel, and these outcroppings like a secondary petal is called the sepals, also called the calyx. And these petals are called the corolla. Okay, so these are the parts of a flower. So now we are going to see how these parts function in the sexual reproduction in plants. तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता क्या है. तो इन अ प्लांट, विच इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज द पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर. Okay, so the flower is the unit of sexual reproduction in plants. Okay, तो जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस प्लांट्स में होता है, वो फ्लावर के अंदर होता है. ठीक है, अभी हम फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े देख लेते हैं. ठीक है, फ्लावर्स जिसमें स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब जिसमें नीचे डंडा रहता है, दोस आर कॉल्ड पेडिसिलेट. फ्लावर्स विथ स्टॉक आर कॉल्ड पेडिसिलेट. फ्लावर्स with stalk are called pedicellate. Then there are flowers that are without stalk. They are called flowers without stalk are called sessile. Yeah, sessile. Without stalk are called sessile. Sessile या sessile. Okay. Stalk जो रहता है ना, हमने देखा था वो फ्लावर के पार्ट्स में जो डायग्राम देखो, उसमें नीचे हमने देखा था कि वो सेपल्स के साथ एक नीचे एक
छोटा सा प्रोजेक्शन था ना ऐसा सेपल्स की इधर ऐसा। हाँ, तो जिस फ्लावर्स में ये पोर्शन है उसको हम कहते हैं पेडिसेलेट, और जिसमें नहीं है उसको हम कहते हैं सेसील। ओके, अभी फ्लोरल वॉल्स कितने हैं? देयर आर 4 फ्लोरल वॉल्स इन अ फ्लावर। वॉल्स मतलब जैसे ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक ऐसा ना से 4 है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द वॉल्स। अभी फर्स्ट वॉल के अंदर हमने देखा था ओवरी है ना। फर्स्ट वॉल के अंदर ओवरी है, उसके बाहर के वॉल के अंदर है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो जो अंदर का सबसे हमने पढ़ा था गाइनीशियम करके, सबसे इनर वॉल इज द गाइनीशियम, ठीक है। उसके बाद कौन सा वॉल है? एंड्रीशियम, ठीक है, ये एंड्रीशियम। उसके बाद क्या है? कोरोला, यानी कि आपके पेटल्स। और सबसे बाहर क्या है? सेपल्स या तो कैलिक्स, ठीक है। तो ये है आपके 4 फ्लोरल वॉल्स, 4 फ्लोरल वॉल्स। सबसे इनर मोस्ट इज गाइनीशियम 1, एंड्रीशियम, उसके बाहर कोरोला एंड देन सेपल्स। सेपल्स आर द लास्ट वंस आफ्टर। तो ये फ्लोरल वॉल का मतलब है कि आप देखेंगे ना फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, कोई भी फ्लावर के इसके अंदर कुछ रहता है ना ऐसे। ये तो बाहर तो आपको पेटल्स दिखेंगे, लेकिन सबसे सेंटर में जो है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इधर। ये जो बाहर है ये आपका कैलिक्स है, ये पेडिसेलेट फ्लावर में। ये आपका गाइनीशियम है, ये आपका इधर जो बाहर इसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हमने देखा थे एंथर और फिलामेंट, वो थे आपके एंड्रीशियम, गाइनीशियम, एंड्रीशियम। फिर ये है आपका पेटल्स, और ये है आपका सेपल्स। तो ये है 4 वॉल्स जिसके अंदर ये एकदम सेफली बैठा हुआ है। वो एक टाइप का प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को। ओके, तो विच आर द 4 फ्लोरल वॉल्स? गाइनीशियम, एंड्रीशियम, कोरोला एंड सेपल्स। Okay, these are your 4 walls. Now, which are the essential walls for reproduction? The essential walls are gynoecium and andrecium. Essential walls. जरूरत वाले walls कौन से? Essential walls are इनमें से andrecium and gynoecium. And ठीक है, क्यों? Because these are the 2 walls that perform reproduction, so they are essential walls. Okay, these two walls are responsible for the reproduction in a flower, so they are called essential walls. फिर accessory walls क्या है? accessory walls मतलब कि जो उनको बाहर से एक्स्ट्रा जो walls है, जो एक हिसाब से उनको प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब उसके साथ जुड़े हुए walls हैं, जो उसके साथ है, साथ में जो है essential, the accessory walls, they are the calyx and the corolla. Calyx and corolla. Let me write this as calyx so that you are not confused. याद रखो, corolla is petals and calyx is sepals. Okay, so which are your 4 walls? 4 floral walls are gynoecium, andrecium, corolla and calyx. अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो calyx, corolla, andrecium and gynoecium. Which are the essential walls? The reproductive organs, that are the andrecium and the gynoecium. gynoecium में क्या आता है? ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो सेंटर में। एंड्रीशियम में क्या आता है? आपका एंथर एंड फिलामेंट। ओके, तो एसेंशियल वॉल्स आर gynoecium and andrecium. Then which are the accessory walls जो उनको सपोर्ट करते हैं? That are the calyx and the corolla. The calyx members are what color? calyx हमेशा आपने देखा होगा कि it is green in color, है कि नहीं? आप कोई भी फ्लावर में देखो, जो सबसे नीचे वाला जो ये जो पार्ट है दैट इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर, लेकिन कोरोला जो पेटल्स है इट इज क्या कलर है उसका? इट इज मल्टी कलर ना, कोई भी कलर हो सकता है, एनी कलर। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. Now the flower is the reproductive unit of a plant. Okay, and the flowers that have stalk is called the pedicellate flower. Flowers that don't have the stalk are called the sessile flowers. Now how many floral whorls does a flower have? 4 floral whorls: gynoecium, andrecium, corolla and calyx from the inside out. But if you go from outside in, it is calyx, corolla, andrecium and gynoecium. Which are the essential whorls? The gynoecium and the andrecium, because they help to perform reproduction. Which are the accessory whorls?
which help protect them, the calyx and the corolla. Now within flowers there are two types. One is bisexual flower and one is unisexual flowers. अभी flowers के अंदर भी दो type है, ठीक है? Which are the two types? Bisexual flowers and unisexual flowers. Okay? तो अभी हमने अभी जो फ्लावर अभी जो ड्राइंग में देखा था वो फ्लावर में दैट वाज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट वाज अदर हिबिस्कस फ्लावर. हिबिस्कस फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैव बोथ द मेल एंड द फीमेल reproductive organs. Okay, bisexual flowers have both gynoecium and androecium are present. Okay, in a bisexual flower both androecium and gynoecium are present. इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस फ्लावर. हिबिस्कस बहुत कॉमनली मिलता है, दिखाई देता है ना हमको हिबिस्कस, या तो शू फ्लावर बोलते हैं, हिबिस्कस को शू फ्लावर भी बोलते हैं ना. तो दिस इज वेरी कॉमनली फाउंड. सो दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. इट कंटेन्स बोथ द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में only either gynoecium or androecium is present. Okay, जो अब हमने 4 वॉल्स देखे थे, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में 4 वॉल्स नहीं होंगे, 3 ही वॉल्स होंगे. दे हैव ईदर gynoecium और androecium. ओके, ईदर याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. ईदर, इसमें बोथ है. हाँ, in bisexual flowers both male and female reproductive organs are present. In unisexual flowers only either gynoecium is present or androecium is present. Okay, इसका एग्जाम्पल है पपाया का फ्लावर. पपाया फ्लावर में मेल होता है एंड मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है? मेल फ्लावर्स आर ओनली द androecium, फीमेल फ्लावर्स आर ओनली द gynoecium. हाँ, ठीक है ना. फीमेल फ्लावर्स के अंदर एक मेंबर्स होते हैं कार्पल्स. दे आर सेपरेटेड और यूनाइटेड. इट हैज एन ओवरी एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पल. द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स. अभी हमने जो उसमें ये फ्लावर के जो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हमने देखा था, उसमें आपने देखा होगा कि ये ऐसा एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है ना ओवरी का. इसके अंदर और ऐसा एक हमने देखा होगा, ध्यान से दिया होगा आपने, तो ठीक है. तो फीमेल फ्लावर के अंदर ना कार्पल्स रहता है. कार्पल इज सेपरेटेड और यूनाइटेड, ठीक है? एंड इट हैज एन ओवरी एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पल. ये जो कार्पल्स है, ओके, ये जो कार्पल है, they are called the members of the gynoecium. Carpels are the members of the female reproductive organ, members of the gynoecium. Okay, these are either separated, और या तो ये जुड़े रहते हैं या तो अलग अलग रहते हैं, और हर कार्पल के नीचे ऐसे कई स्ट्रक्चर्स रहते हैं. ये जो आपका ओवरी है, ये कार्पल जो है ना, उसमें इसके बेस में, कार्पल के बेस में एक ओवरी का स्ट्रक्चर रहता है. दिस इज ओके. सो ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पल. दे कैन बी मैनी और दे कैन बी यूनाइटेड. ये काफी अलग अलग भी कार्पल्स हो सकते हैं, जिसके हर बेस में एक ओवरी या तो ये साथ में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ठीक है? और इनके ऊपर एक होलो स्टाइल, जो आपने जो फ्लावर के पार्ट्स में देखा होगा, एक स्टाइल ऊपर आ रहा था. अ होलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम दी ओवरी. जो ओवरी, जो कार्पेल के बेस में जो ओवरी है, उसके ऊपर क्या आता है? एक स्टाइल आता है. स्टाइल क्या? खोखला रहता है. इट कम्स अप लाइक दैट. ओके, द स्टाइल इज होलो मतलब अंदर खोखला है. हाँ, और उसके टिप में क्या प्रेजेंट है? अभी जैसे आपका ये सपोज ओवरी था, सॉरी थोड़ा और बड़ा बनाते हैं. सपोज ये आपका ओवरी था, हमने देखा था कि ये है आपका स्टाइल ना,
ये आपका है ओवरी, ओके, और इसके ऊपर है आपका स्टिग्मा। ये टुगेदर क्या बनाता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यस, सो अ होलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। ये जो स्टाइल है ना, इसके अंदर कुछ नहीं, खाली है। इसका पर्पस हमें आगे पता चलेगा क्यों ये खाली रहता है। हाँ हाँ, इट इज होलो। स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। ये जो टॉप में, ये यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे चीजें रहती है, उसको कहते हैं स्टिग्मा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस when pollination takes place, the stigma becomes sticky। ठीक है, आपने अगर कभी फ्लावर का टॉप टच किया और स्टिकी फीलिंग हो रहा है तो आप समझ जाना कि उसमें पॉलिनेशन हुआ है। ठीक है, तो जो ये ओवरी है ना, इट कंटेन्स वन और मेनी ओव्यूल्स। हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे ऐसे 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 करके जो देखे थे। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ठीक है, और जो ये एम्ब्रियो सैक है फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। अभी ये हर एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है। इट कैन एम्ब्रियो सैक विच इज फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ठीक है, इसको हम थोड़ा और क्लोजली एक नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो ये ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर के पार्ट्स क्या है? ये जो है, ये इसको कहते हैं ओव्यूल्स। ये जो दिख रहे हैं आपके प्रोजेक्शंस है, these are called the ovules। this is your stigma, this is your style। ओके, तो ये जो ओवरी के अंदर जो ये है आपका ओव्यूल। इसके अंदर होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ओके, तो कैसे होता है इसमें जो ये जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है ना, द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन दीज ओव्यूल्स। ये जो ओव्यूल्स है इसके अंदर, ये इसका एक पोर्शन को बड़ा करके दिखाया, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर दो, ऐसा एक सेल है जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई है। फिर ये है आपके एंटीपोडल्स, इधर एक एग है। और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये इसका कनेक्शन है इसको। तो अभी हम देखेंगे कि जब पॉलिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है। ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग पॉलिनेशन। नाउ हाउ इज द एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड? एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल्स बाय मियोसिस। जैसे हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय meiosis। Okay, so the embryo sac is also formed in the ovules by meiosis। Okay, the embryo sac is formed in the ovules by meiosis। Okay, now each embryo sac contains a haploid egg cell। जैसे हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हैप्लॉइड, दो अलग हैप्लॉइड सेल्स कंबाइन करके एक नया डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। करेक्ट, तो कैसे होता है ये? अभी ये जो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, दिस ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अंदर क्या है, दी gynecium है ना, this is a gynecium। what does it contain? It contains the ovules in which there is a haploid egg cell। okay, haploid egg cell, याद रखो, वो haploid egg cell now will meet a haploid sperm cell, okay, and form a zygote। ठीक है, अभी वो कैसे होता है? now ovary is connected to hollow style। हमने जैसे देखा था, ये जो स्टाइल है ये होलो है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। now the ovary that is connected to the होलो स्टाइल हैज स्टिग्मा ऑन द टॉप। ठीक है, यहाँ जो टॉप में स्टिग्मा है, ये पोर्शन। ओके, द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। दिस इज पॉलिन। अभी ये जो हम पॉलिनेशन देख रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देख रहे हैं ना, तो अगर सपोज ओके बाइसेक्सुअल हो या यूनिसेक्सुअल हो, जो दूसरे अगर बाइसेक्सुअल हो तो सेम फ्लावर में जो एंथर और फिलामेंट है उसके ऊपर जो पॉलन है उसको लेके इस पे डालेगा, या तो दूसरे फ्लावर से लेके आके डालेगा, देन दैट विल बी यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर इसके जो हमने देखा था फ्लावर के पार्ट्स में जो एंथर और फिलामेंट है, वो एंथर के ऊपर पॉलन है। ओके, द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। सपोज ये एक एंथर हम बना देते हैं, ये इसमें सपोज पॉलन ग्रेन्स था, ये इसका जो पॉलन ग्रेन्स है इट इज ट्रांसफर टू द, दिस इज पॉलन ग्रेन्स। ओके, एंड दिस इज योर एंथर, सॉरी नॉट दिस इज योर फिलामेंट, दिस इज द एंथर, दिस इज द फिलामेंट। ओके, तो एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स है
they are transferred to the stigma. इसको कहते हैं pollination. This process is called pollination. What is pollination? When when pollen grains from the anther are transferred to the stigma, that is called pollination. तो pollination होता कैसे है? दो तरीके से होता है. एक तो बाय अबायोटिक एजेंट्स, मतलब नॉट बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड ऑल. अबायोटिक, जैसे अगर हवा से कभी पॉलिनेट हो जाता है, हवा भी पॉलन ग्रेन उड़ा के लेके आता है. कभी कभी बारिश होती है तो पानी की वजह से पॉलन ग्रेन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है. दोज आर कॉल्ड दी abiotic agents. Which are the abiotic agents? Wind and water. Abiotic agents for pollination are wind and water. Okay. And what are the biotic agents? जो biological agents क्या है? जैसे आपने देखा होगा हनी बी. For pollination are insects. Then birds भी करते हैं, animals भी करते हैं, है ना. Insects, birds and animals. ठीक है. They are biological creatures, no? So they are called biological agents. Okay. So how does this happen? How does pollination take place? How does pollination take place? Either by biotic agents like insects, birds and animals, or by abiotic agents like wind and water. Okay. Now what happens during pollination? During pollination the stigma becomes sticky, and when pollen falls on this it starts to germinate. अभी ये फ्लावर के अंदर ही एक प्रोसेस है जिसमें जब पॉलिनेशन का टाइम होता है ना, तब ये स्टिग्मा ना स्टिकी हो जाए, यानी कि चिपचिप होने लगता है. ठीक है. तो वो कितना अच्छा है देखो फ्लावर के लिए. जब ये प्रोसेस उसका व्हेन इट इज मैच्योर फॉर रिप्रोडक्शन, द स्टिग्मा बिकम स्टिकी. नहीं तो अगर पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करेगा तो इट कैन get washed away or flown, it can fly away. But since this becomes sticky, what happens? The pollen grain comes and sticks on the stigma. Okay. And then what happens? It starts to germinate. इधर ये germinate करने लगता है. Germination आपको पता है क्या होता है. तो what happens? The pollen grains from the anther are transferred to the stigma. The stigma becomes sticky during reproduction, and then the pollen grains start to germinate. Then what happens? In germination, a long pollen tube and two male gametes are formed. अभी जब ये germination होता है ना, तो इसमें ना एक बहुत अचंभी वाली बात होती है. एक pollen tube form होने लगता है. ओके. एक pollen tube, और उसके अंदर क्या है? क्या गेस कर सकते हो? उसके अंदर है two male gametes. Okay. So what is there inside the pollen tube? When does the pollen tube form in the first place? The pollen tube forms during germination. Okay. And once the germination starts taking place, what happens? The pollen tube starts to, this is your pollen tube. Okay. And what is this? These two are your male gametes. Okay. तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है. Pollen grain has been transferred from the anther to the stigma, where the stigma has become sticky and it allows the pollen grain to germinate. When germination starts, what happens? एक लंबा tube starts forming, a long pollen tube, and two male gametes are formed. The pollen tube transports the male gametes and reaches the embryo sac. अब देख रहे हैं कैसे अभी ये जो male gametes है वो कैसे नीचे आएंगे? ये ट्यूब के थ्रू नीचे आके कहाँ एंटर करेंगे? इनटू द ओव्यूल्स. ठीक है. यहाँ जो हम प्रोसेस देख रहे हैं इसके अंदर वो ये स्पर्म इधर से ट्रैवल करके इसमें घुस गया है. ओके. अभी हम इधर देखेंगे क्या हो रहा है. हाँ. द पॉलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट्स द मेल गैमेट्स एंड रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया द स्टाइल. देख रहे हैं ना, यही स्टाइल था ना हमारा, ये पोर्शन. दिस इज योर स्टाइल. तो ये स्टाइल के थ्रू, ये आप स्टाइल खोखला क्यों था? इसीलिए खोखला था. इट वॉज होलो फॉर द pollen tube to form and come down into the ovary. And once it comes down, what happens? It enters one of the ovules. So the pollen tube transports the male gametes and reaches the embryo sac via the style. The tip of the pollen tube bursts. अभी क्या होता है? जैसे ये pollen tube अंदर आता है वो फूट जाता है. It bursts and two male gametes are released in the embryo sac. अब यहाँ देख रहे हैं एक मेल गैमेट इधर है, एक मेल गैमेट इधर है. जब ये अंदर पहुंचा ना ये पॉलन ट्यूब,
तो ये इधर आके फट गया, फट के क्या हो गया, ये जो इसके अंदर तो दो मेल गैमीट्स थे इधर, वो अभी इसके अंदर रिलीज हो गए। रिलीज होके क्या हो रहा है, अभी उसमें से एक मेल गैमेट ना एग सेल के साथ यूनाइट हो जाता है, ओके, एंड दूसरा गैमेट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ ज्वाइन होता है। वो हम देखते हैं क्या होता है उसको डबल जर्मिनेशन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, द टिप ऑफ द pollen tube bursts and two male gametes are released in the embryo sac. One of these male gametes unites with the egg to form a zygote. देख रहे हैं, अभी ये जो zygote फॉर्म हुआ है that is the fertilization. So what is fertilization? When the pollen grains from the anther are transferred to the stigma, it starts to germinate and a pollen tube is formed along with two male gametes. The pollen tube reaches the ovary and enters the ovules. There it bursts. Once it enters the ovule, the two male gametes are released, and one of the male gametes combines with the embryo sac. It enters the embryo sac. One of the male gametes unites with the egg cell and forms a zygote. This is called fertilization. The other male gametes unites with the two polar nuclei. हमने देखा है, जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उसमें से एक स्पर्म सेल आके ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म. तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एज टू न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस. इसमें आप देख रहे हैं दो न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म. तो इसलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. सो आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ये फ्लावर के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है. इसमें भी स्पर्म एंड एग सेल्स आर इन्वॉल्व. सो दैट्स व्हाई दिस reproduction in this flower, these types of flowers are also called sexual reproduction because two haploid gametes are involved. One two this male haploid gametes and one female haploid gamete. और flowers में male organs को androecium कहते हैं और female organs को gynoecium कहते हैं. Okay, so how does double fertilization take place? These two male gametes that travel down the tube are burst into the ovule and then one of the one of the sperms unites with the egg cell and forms a zygote. The other unites with the two polar nuclei and forms the endosperm. Now this is called double fertilization. Okay, so अभी pollination भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है. हमने देखा था एक तो wind and water से होता है और दूसरा होता है animals, birds and insects के थ्रू. लेकिन ये self pollination क्या होता है? What is self pollination? अपने आप को pollinate करना. When pollination is involving only one flower or two flowers from the same plant. एक ही plant में दो अलग फ्लावर या एक ही फ्लावर में अगर से पॉलिनेशन हो रहा है तो इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब टू फ्लावर्स फ्रॉम टू प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, प्लांट्स अलग है लेकिन स्पीशीज सेम है, लेकिन दो अलग प्लांट से ये प्रोसेस हो रहा है. मतलब अगर सपोज एक हनी बी जाके एक प्लांट में बैठा, फिर बाद में आके दूसरे प्लांट पे बैठा और इसके एंथर का पॉलन लेके इसके प्लांट के स्टिग्मा में डाला, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. लेकिन अगर उसी प्लांट के फ्लावर में से किसी में डाला, उसी प्लांट में जब 4-5-10 फ्लावर्स है उसमें से एक फ्लावर में बैठ के एंथर से लेके पॉलन लेके उसके दूसरे फ्लावर में डालेगा, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सो दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेसन और we will be reading about the sexual reproduction in human beings. इसमें एक और है आपका सीड कैसे जर्मिनेट होता है. हाउ डू सीड्स जर्मिनेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अभी ये जो सीड है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द ओव्यूल इन द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड. तो ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड एंड द ओवरी इनटू द फ्रूट. ठीक है, अभी फ्रूट जब टूटता है तो क्या होता है, वो सीड पूरे जमीन में गिर जाते हैं, करेक्ट. और अगर सॉइल अच्छा है, पानी सफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट्स है अच्छे सॉइल में, तो क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट होता है. हाँ, और जो फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड हेल्प्स द जाइगोट टू डेवलप फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट. हमें देखा था यहाँ जो ये मेल स्पर्म जो पोलर न्यूक्लियर के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उसमें क्या फॉर्म कर रहा है, एंडोस्पर्म ना. एक तो ये जाइगोट फॉर्म किया, एंडोस्पर्म फॉर्म किया ना, तो हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. इधर मैं लिख के आपको देती हूँ. डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कब होते हैं, जब when one male when one male gamete
unites with the egg, and the other male gamete unites with the polar nuclei. पोलर न्यूक्लियर. ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? जब वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग, इसमें फॉर्म हो रहा है आपका जाइगोट. ठीक है, एंड व्हेन वन मेल गैमेट यूनाइट्स विद द पोलर न्यूक्लियर तो क्या फॉर्म होता है? एंडोस्पर्म. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. तो आपके सीड के अंदर क्या होता है? सीड, जो आपको सीड का स्ट्रक्चर पता होगा, सीड में एक बहुत, आप कोई भी अगर आप जो हम लोग ये स्प्राउटिंग के लिए जो बीन्स स्प्राउट करने के लिए रखते हैं, आप नेक्स्ट दिन देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा व्हाइट कलर का पोर्शन बाहर उगने लगता है ना? वो क्या है? और बाकी पोर्शन क्या है? वो उसमें आपको एंडोस्पर्म पता चलेगा क्या होता है. देखो ऐसा रहता है, जैसे आपका अगर सपोज कोई भी सीड है, बीन का सीड है सपोज, उसको अगर आपने खोल के लिया तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है कि नहीं? है ना? और उसके अंदर आपको एक ऐसा एक हल्का सा ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना, ऐसा वाइट कलर का, ऐसा बाहर आता हुआ. हाँ, तो ये जो बाहर का पोर्शन है, ये है इसका सीड कोट. ये सीड कोट है. फिर ये जो फूड स्टोरेज है ना, ये है आपका एंडोस्पर्म. फूड किधर स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में. है, ठीक है. और ये है आपका एम्ब्रियो, बेबी प्लांट या एम्ब्रियो, जो ओव्यूल में जो प्रोसेस हुआ था उसके बाद ये जो सीड फॉर्म हुआ है उसके अंदर ये है. ये आपका सीड कोट है और ये पोर्शन है आपका फूड स्टोरेज एंडोस्पर्म, जहां से ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल रहा है. ठीक है, ये जो एम्ब्रियो कैसे बढ़ रहा है, ये प्लांट कैसे बढ़ रहा है, वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से खींच के बढ़ता है. तो क्या होता है? हाउ डू सीड्स जर्मिनेट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो हमने इधर देखा, जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, यहाँ मेल गैमेट्स इसमें गिरे थे और जो जर्मिनेट होने के बाद जो पॉलन ट्यूब फॉर्म होके जो मेल स्पर्म नीचे आए थे, उसमें से वन कंबाइंड विद द एग, वन कंबाइंड विद पोलर न्यूक्लियस, एंड व्हाट हैपेंड? इट फॉर्म्ड अ सीड. ओके, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल इन द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड. ये जो ओव्यूल है वो अभी एक सीड बन गया है. हाँ, और जो ओवरी एक फ्रूट बन जाता है. ये जो ओवरी आपका फ्रूट बन जाता है और ये सीड बन जाता है. देख रहे हैं कैसे आपका अंदर, अभी इसको आप इमेजिन करो कि दिस इज अ फ्रूट. हाँ, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद दिस आउटर पोर्शन बिकम्स अ फ्रूट एंड दिस ओव्यूल्स बिकम द सीड. नाउ जब ये पक के ये फ्रूट टूट जाएगा तो क्या होता है? इसके जो सीड्स है, जो सीड फॉर्म हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट विल फॉल टू द ग्राउंड एंड जर्मिनेट. और जर्मिनेट होने के बाद, वो जर्मिनेट होने के टाइम कहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है? द फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म से. हाँ, वो ये जाइगोट को डेवलप होने के लिए हेल्प करता है और एक नया प्लांट बन जाता है. ठीक है, एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट. जो इधर जो जाइगोट फॉर्म हुआ था ना, मेल ये एग के साथ जब ये मेल स्पर्म यूनाइट हुआ था, वो जाइगोट को किधर से मिल रहा है न्यूट्रिशन? फ्रॉम द एंडोस्पर्म फॉर्म बाय द combining of the male sperm with the polar nuclei. Okay, and that's how a new plant is formed. With this we get over with the sexual reproduction in plants. So in the next video we learn about sexual reproduction in human beings. Okay, please go through this lesson carefully, and if there are any doubts, please let me know in the comments. Thank you.